workshop was about communication skills from the perspective of active listening. लेकिन चूँकि वर्कशॉप हमने 20 पर्सन्स के लिए और ऐसा बनाया था कि उसमें इंटरेक्शन हो, सो इसको चेंज करते हैं और we'll briefly go through few of the slides, and then instead of giving you a lecture, I'll leave some questions for you for food for thought. Though communication is, you all know that it is the expression and transmission of information, knowledge, ideas. It is a two-way process in which only the information is not only given, but it is confirmed as well. It is confirmed, it is checked whether it is well taken or not. And then the person to whom you are giving this information, you ask him for feedback. So listening is the integral and part and parcel of good communication. An effective communication will encompass to understand what is not spoken. हम मेरे मुंह से बार बार ये लफ्ज़ निकलेगा पेशेंट का, although this is not only for patients, but because we are used to talk about patients. So communication is to understand what is not spoken, to communicate what is not asked, and to understand what is not to be communicated. Good communication will encompass all these three factors. सो थोड़ा सा चूँकि मैंने आपको बताया कि ये इट वाज अ वर्कशॉप और 60 मिनट्स का था, बट आई विल कंक्लूड इट इन लेसर टाइम बिकॉज ऑलरेडी व्हेन वी आर स्टार्टिंग इट्स 40 past 9. So if you think, if you see, when first the human being appeared on the earth, they had no language. डिवाइन बातों को अगर हम एक साइड पे रख के कि व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, और पहली ज़बान क्या थी, हम कौन सी ज़बान बोलते थे और कैसे फिर ये ज़बानों में इजाफा होता गया. इफ़ देयर वाज अ लैंग्वेज, व्हाई डिड वी नीड अनदर लैंग्वेज, और अगर हमें दूसरी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ भी गई तो एक और क्वेश्चन ये है कि इन द लास्ट 100 years कि जब हम इतनी तरक्की कर रहे हैं तो अब कोई नई ज़बान नहीं बन रही. सो दीज आर अ फ्यू क्वेश्चंस, फूड फॉर थॉट, कि आप इसको सोचें कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज हुआ कैसे था, कब हमने बोलना शुरू किया. अबाउट 150,000 years ago. दिस इज़ व्हाट इज़ अवेलेबल. अदरवाइज़ जो रिलीजन्स हैं उनका अपने अपने रिलीजन के मुताबिक कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हैड हिज लैंग्वेज विद हिम. तो इनिशियल अल्फ़ाबेट्स कुछ ऐसे थे, उसके बाद सिंबल्स. व्हाट इज़ योर बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इसमें देयर इज़ सम डिस्प्यूट, लेकिन इधर इट इज़ संस्कृत और इट इज़ सुमेरियन. दीज आर द फ्यू लैंग्वेजेस विच आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. ये कुछ लैंग्वेजेस का टाइमलाइन है कि किस ईयर में कौन सी लैंग्वेज आई है. सो द वर्ल्ड्स यंगेस्ट लैंग्वेज जो सिर्फ 100 साल पुरानी है, दैट इज़ अफ्रीकन यंगेस्ट लैंग्वेज. सो फार वी आर टॉकिंग के लैंग्वेज पहले शुरू कैसे हुई, फिर इनमें इजाफा कैसे होता गया, एंड इफ़ देयर वाज अ लैंग्वेज तो दूसरे और तीसरे लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी. देयर आर 7,000 स्पोकन लैंग्वेजेस, 7,000, एंड 300 राइटिंग सिस्टम्स. नाउ कमिंग टू द टर्म एक्टिव लिसनिंग, कि व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग एक्चुअली. लिसन तो हम सब एक दूसरे को करते हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग मीन्स when you are actually involved in the process, when the other person is telling you something, you are not only taking it rightly, you are not only understanding it, but you are giving him a reflection, you are giving him and you are telling him that whatever you are understanding, and you are then
making some clarifications. So active listening, Professor Muhammad Shafiq, my first teacher in psychiatry, जो लोग उनको जानते हैं तो उनको मालूम है कि लिसनिंग किस तरह प्रोफेसर शफीक साहब से लोग सीखते थे एंड हाउ बेस्ट लिसनर ही वाज. So we are lucky to learn from him the listening skills rather than the talking skills. So far, why to listen actively? Because being fully present with the person, with the speaker, being fully present with the patient or the person, fully present का और ये जो asking open-ended questions, इनके we will just go through it because as I am repeatedly telling you that we have changed the format from workshop to a presentation. So I'll come straight to a few scenarios then. Fully present का मतलब ये है that you stop all other activities, your internal thinking, your internal daydreaming, your phone call, mobile off, और जो अगर यहाँ पर कोई हैं ट्रेनीज या स्टूडेंट्स तो टर्न टू द पेशेंट, टर्न टू द स्पीकर, पूरी तरह अपना मोबाइल एक साइड पे रखकर और पूरी तरह उसकी तरफ घूम के. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्टिव लिसनिंग. देन आफ्टर फुल अटेंशन, नॉन वर्बल क्यूज़, बिकॉज यू नो मोर देन 50%, कुछ जगहों पे 60 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 90 लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट मोर देन 50% ऑफ कम्युनिकेशन इज़ थ्रू नॉन वर्बल क्यूज़. एंड अ गुड psychiatrist, a good communicator will take notice of all those cues, non-verbal जितने भी हैं. For example, good eye contact. Now, tip for the students is that good eye contact must be differentiated from staring. It should be 50-70. Like 50% of the times you'll be looking towards the patient for 5 seconds, keep eye contact and then break it, because staring or continuous eye contact will be embarrassing for your patient or your speaker. Open-ended or closed-ended questions के जो you are already in picture about it, so we will come directly towards. It was a task for a workshop, but because it is not a workshop, लेकिन ये ऐसा डिज़ाइन किया था कि written communication skills are equally important जिस तरह आपके verbal communication skills हैं. Because whenever you are writing to someone, for example to authority, for example to a medical unit, तो आपने कौन सी चीज़ उसमें highlight करनी है. If you are writing to authority तो statistics, if you are writing to another unit तो patient की condition and what do you want. ये task 2 था role play. चलें, we will go through a few scenarios. किस तरह आप communication skills, written communication skills for print media, for media, electronic media, social media, how to communicate with policy makers. जब पॉलिसी मेकर्स के पास आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी ये बात का कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर आप उनको बताएं कि जी हम सिर्फ 500 साइकियाट्रिस्ट हैं वगैरह वगैरह. यू हैव टू देन टेल देम अबाउट डिजीज़ बर्डन, अबाउट स्टेटिस्टिक्स एंड अबाउट व्हाई यू आर आस्किंग फॉर समथिंग. तो आपने उसको प्रूव करना होता है. हाउ टू यूज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स विद पॉलिसी मेकर्स, हाउ टू कन्विंस a person कि आपके लिए या डिप्लोमा साइकाइट्री शुरू करे या फॉर एग्जांपल साइकाइट्री शुड बी इंक्लूडेड इन अंडर ग्रेजुएट. ये दिस इज़ अ मीटिंग विद PMDC in June 2023, few months back, when we were trying to convey our message why behavioral sciences and psychiatry is important. So communication skills आपको यहाँ पे चाहिए. पॉलिसी मेकर जिस तरह हम KMU के साथ when we were to bring change in the papers. Feedback, किस तरह feedback लेते हैं आप, individual and then collective feedback. This is a scenario. यहाँ पर ये डिप्लोमा CBT का प्रोग्राम जो under supervision of Professor Bashir. So Professor Rana was getting feedback about a program कि इसमें और क्या क्या changes होनी चाहिए. देखें, Professor Rana and Professor Bashir, they are icons of CBT, but in spite of that, good communication means कि आप constantly अपने आप को भी analysis कर रहे हैं and you are trying to improve yourself. Communication with friends,
पिक्चर स्टॉक, कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बात करें. दिस वाज ग्रीफ काउंसलिंग कैसे करते हैं स्पाइक्स का मॉडल, बट वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज टू अदर एस्टीम्ड स्पीकर्स आर वेटिंग फॉर देयर turn. How to communicate with a difficult student, how to talk on a bigger forum. Drug abuse, यहाँ पर आपका therapeutic model totally change हो जाता है. When you talk to the drug abuser, you are not actually giving them just information. The model is deliberative model. You want to reach some conclusion. You want to take them to some conclusion. It is there in your mind. सेक्सुअल डिस्फंक्शन, आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं उनसे ये पूछूं कि आप अपनी लोकल ज़बान में सेक्सुअल एक्ट के मुतालिक जितने टर्म्स हैं, कैन यू प्रोनाउंस इट इन योर लोकल लैंग्वेज? सो आई एम श्योर मेजॉरिटी विल हैव वेरी लेसर वोकैबुलरी. सो हाउ टू कम्युनिकेट विद योर पेशेंट अबाउट सेंसिटिव इश्यूज़. फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग, किस तरह आपने कम्युनिकेट करना है अगर आप फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, कौन सा कल्चर है, कौन से लोग हैं, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है इस आपकी बात की, और आप किस तरह पर इसको कम्युनिकेट करेंगे. येस्टरडे वी वर अप्रोच्ड बाय वन ऑफ अ जर्नलिस्ट अबाउट आवर पेशेंट हु इज़ हैविंग फैक्टिशियस डिसऑर्डर, और फेसबुक पे उसकी वीडियो आ गई है, और वो जो रिपोर्टर है उसने उसको इस तरह पेश किया है जैसे डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं कर रहे. He is having factitious disorder. He is inserting needles into his joints. He is operated more than 8 to 10 times by orthopedic surgeon. This time he is referred to a psychiatrist. कि आप पहले वहाँ से अपना इलाज करा के आ जाएं. Now just imagine if you are the person who has to answer the journalist, वो आपसे पूछते हैं कि जी इस मरीज़ को क्या बीमारी है, तो हाउ विल यू कम्युनिकेट अबाउट फैक्टिशियस डिसऑर्डर कि जी वो पहले तो प्राइमरी गेन के लिए आप क्या बताएंगे, सेकेंडरी गेन के लिए. सो द मैसेज इज़ कि लोकल लैंग्वेजेस जितने भी हैं आपके, यू हैव टू लर्न साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी इन दैट लैंग्वेज, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज अबाउट आप किस तरह घर जाते हैं, और अगर देर से जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डिसाइड करेंगे. अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो देखें एक साइड पे आप, और अगर अच्छे नहीं है, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, तो ये दूसरा साइड आपके लिए. सो कम्युनिकेशन विद द चिल्ड्रन, कम्युनिकेशन विद द लर्निंग डिसेबिलिटी पेशेंट्स. द मैसेज इज़ कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले आपको लोकल लैंग्वेज चाहिए. इन द लास्ट में जैसा आपको बार बार बता रहा हूँ कि इट वाज अ वर्कशॉप, तो मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूँ. बिफोर दीज क्वेश्चंस लेट मी कंप्लीट. ये मलम जब स्किज़ोफ्रेनिया अपडेट की कॉन्फ्रेंस थी लास्ट ईयर 2022 में, एंड दिस वाज नवंबर 2022 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड दिस इज़ योर सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस इन सक्कर. टेक होम मैसेज आपको एक दे रहा हूँ. एक्सपेरिमेंट कर लें आप, जो भी बिजी प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपने ओपीडी में मिनिमम 50 से लेकर मोर देन 100 पेशेंट्स देखते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट कर लें आप लोग. लिसन टू एवरी पेशेंट इवन इन अ वेरी बिजी ओपीडी अनइंटरप्टेड फॉर 2 to 3 minutes. बहुत आइडियल बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट की बात कह रहा हूँ. 2-3 मिनट मीन्स 160 सेकेंड्स, ठीक, या 180 सेकेंड्स एट द मोस्ट. और आफ्टर फ्यू वीक्स आप रिव्यू कर लें वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट in terms of reaching some clue about the diagnosis. Is it wasting your time, or is it saving your time? And what is the patient satisfaction rate if you listen to the patient uninterrupted for 2 to 3 minutes initially? So, sir, without any further delay, एक बात ये कि vagueness of psychiatry is the beginning of its depth. मैं कुछ questions आपके साथ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ताकि मेरे पास जो दूसरे मेरे बाद 2 स्पीकर्स हैं उनका टाइम ख़राब ना हो. आप सिर्फ ये सोचें, घर में जाएं, हाउ डज़ अ पर्सन कन्विंसेस अनदर वन फॉर सुसाइड बॉम्बिंग, उसको ख़ुदकुशी के लिए तैयार कर लेता है. व्हाट आर दोज कम्युनिकेशन स्किल्स कंपेयर टू दिस कि हम उसी वी फेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि भाई ये नशे की जो आदत है इसको छोड़ दें. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्यों हम
फेल हो जाते हैं किसी को ड्रग अब्यूज़ के लिए कन्विंस करने में, और क्यों कोई और सुसाइड बॉम्ब के लिए किसी को तैयार कर लेता है। इफ़ आवर साइकेट्री इज़ वेग, मसलन जवाब यही मिलता है कि अगर हम किसी भी फोरम पे बात करें कि जी साइकेट्री इज़ वेग, इसलिए इसकी बात करना मुश्किल है। सो अनदर क्वेश्चन इज़ कि साइकेट्री इज़ वेग, मैजिक जो है उसमें कौन सा इतना एविडेंस बेस है। आपके सारे लोग काले जादू पे तो फ़ौरन बिलीव कर लेते हैं, लेकिन अगर आप साइकेट्री के किसी वेग टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, देन दे फेल टू अंडरस्टैंड वेयर इज़ द प्रॉब्लम। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन आपके साथ छोड़ रहा हूँ। और एक केस मेडिकल बोर्ड का एक्चुअल केस था। ही वॉज हैविंग सीवियर ओसीडी, अ स्टूडेंट हु वॉज अप्लाइंग फॉर मेडिकल कॉलेज। उसने क्लेम किया था कि आई शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिसेबिलिटी सीट। ही वॉज हैविंग मॉडरेट टू सीवियर ओसीडी एंड वी न्यू इट, बट वी कुडंट हेल्प हिम बिकॉज कंपेयर टू दैट में एक और केस कि एक पेशेंट का, एक स्टूडेंट का सिर्फ मीडियन नर्व ख़राब था और उसकी 3.5 उंगलियां जो थी उसमें नमनेस थी। बिकॉज नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कुड डायग्नोज इट, तो उसको डिसेबिलिटी मिल गई एंड ही गॉट एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज। कंपेयर टू दैट जो सीवियर ओसीडी का पेशेंट है, जो हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, ही वॉज नॉट गिवन डिसेबिलिटी। So by this I leave this question with you. How will you improve? मेरे पास honestly इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है कि किस तरह हम कम्युनिकेट करें, लेकिन how to communicate about this vagueness of psychiatry so that it is understood and it is accepted. Thank you very much.